और इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए। इस वक्त सेनेट का इजलास बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। Mr. Salim Mandviwala, sir, Mr. Yusuf Raza Jilani, please take your seats. Mr. Tangi, Mr. Faisal Javed, kindly take your seats. Thank you, thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Now, I would like to say that, on the scrutiny of the two contesting candidates, Mr. Yusuf Raza Jilani and Mr. Sadiq Sajrani, their nomination papers have found to be in order. The proposers of Mr. Muhammad Sadiq Sajrani are Senator Dr. Shehzad Wasim, Senator Fida Muhammad Khan, Senator Kamil Ali Agha, Senator Liaquat Khan Tarakhel, Senator Faisal Salim Rehman. The proposers for Mr. Yusuf Raza Jilani are Senator Mia Raza Rabbani and Senator Farooq Hamid Naik. The polling agents for the two candidates, for Mr. Sajrani, the polling agent is Mr. Mohsen Aziz, and for Mr. Yusuf Raza Jilani, the polling agent is Mr. Farooq Hamid Naik. Now, ये सेक्रेटरी साहब जरा मुझे वो दें दरखास्त. Give me that application. Earlier during the course of the day, I had directed Raza Sahab, I had directed the secretary to hold an inquiry into the issue of the cameras. Thereafter, I have been informed by the secretary that an application of Senator Mustafa Nawaz Khokar and Dr. Musaddiq Malik has been made. जी हाँ, वो भी ये ज़रा इनकी भी दे दें दरखास्त स्वाति साहब की. The prayer in that was for the formation of a Senate committee of senators consisting of equal number of members from the opposition and the government treasury benches, and for the convener of the committee to be elected by the members themselves. And the recovered items like cameras and otherwise be secured and sealed till the final disposal of the matter. So therefore, in supersession of the order which I had passed earlier, I am now directing for the formation of a Senate committee of senators comprising equal number of members from the government and the opposition. The three names from the Treasury and the opposition will be submitted to the Secretary of the Senate by the Leader of the House and the Leader of the Opposition. So this will dispose of that matter basically insofar as my earlier order was concerned in the morning. Now I would like to explain to the honorable senators that the candidates and their polling agents are allowed to inspect the polling booth and see and ensure, like I had made a commitment to the House earlier in the morning, that I would ensure that elections are held fair, free and transparent. And therefore, I would like to ask you that in case any of the contesting candidates or their polling agents desires to have a look basically at the polling booth, you're welcome to do so. The procedure for the election will be that every ballot paper has been printed in Urdu with names of the candidates which are also written in Urdu.
The names will be called in alphabetical order. You will approach the Senate Secretary. He will issue you a ballot paper. The ballot papers for the post of the chairman are of green color. ये क्या? उर्दू, ठीक है जी, तर्जुमा भी कर देते हैं। बैलेट पेपर जो हैं जी वो हरे रंग के इशू किए जाएंगे जहां पे चेयरमैन का इंतखाब है। चेयरमैन के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनका नाम उर्दू में होगा एक तरफ, और उसके साथ सामने एक बक्सा होगा स्क्वायर में। आप ये बैलेट पेपर लेकर के जाएंगे पोलिंग बूथ में, वहाँ पे एक स्टैंप मौजूद है पहले से, वो स्टैंप आप जाकर के उस बक्से में बीच में लगाएं। अगर कहीं गलती हो जाती है किसी दोस्त से तो बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर डालने से पहले आप अप्रोच करें सेक्रेटरी साहब को, तो मैं इंश्योर करूंगा कि आपको दूसरा बैलेट पेपर मिल जाए ताकि वो गलती जो है वो दुरुस्त हो जाए। उसको बराए मेहरबानी आप फोल्ड जब करें तो फोल्ड बैलेट पेपर को इस अंदाज से और इस तरीके से करें कि वो बैलेट आपका जो है वो ख़राब ना हो जाए। वो भी आपको हमने पहले भी आप लोगों ने जिन दोस्तों ने इलेक्शन में शिरकत की है उनको सबको पता है। अब ये जो स्टैंप है इसको हर 25 वोट के बाद हम चेंज करेंगे ताकि इसकी इंक जो है वो डिम ना हो जाए। सो आफ्टर एवरी 25 वोट्स what we will do is to change the stamp। और ये भी बता दूं कि मोबाइल फोन्स, कैमरास और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं वो प्रोहिबिटेड हैं। Nobody would be allowed to take either a mobile phone, a camera or any electronic device into the polling booth as such। And हमारे यहाँ 100 मेंबर हैं। इसाकदार साहब की नोटिफिकेशन गालिबन नहीं आई है या आई है, वी आर 99। लेकिन आपकी सहूलत के लिए हम पोलिंग जो है वो 5 बजे बंद कर देंगे। 5 बजे क्लोज करके गिनती शुरू कर देंगे। गिनती में जो रिज़ल्ट आएगा उसकी अनाउंसमेंट करने के बाद जो चेयरमैन मुंतखब होते हैं उनको हलफ दिया जाएगा, और चेयरमैन साहब जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन वो जाके कंडक्ट करेंगे। तो तरीका यही होगा, 5 बजे हम जो है वो पोलिंग को क्लोज कर देंगे। तो हमारी दरख्वास्त दोस्तों से ये है कि बराए मेहरबानी 5 बजे तक आप अपना वोट जो है वो डाल दें। इसमें यहाँ पे बैलेट पेपर को मार्क करने का तरीका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ज़रा सा मेहरबानी करके देख लें। और अगर मज़ीद आपको कोई मालूमात चाहिए तो वो भी सेनेट सेक्रेटरी से या मुझसे आप कर सकते हैं। अच्छा जी, सेक्रेटरी साहब अभी ज़रा बक्से आप दिखाएं खोल के, खाली हैं। बक्से खोलें भाई, बैलेट बॉक्सेस। The candidates and the polling agents kindly will see the boxes are empty. What happened? सील करवा दें भाई, इसको सील करें जी सेक्रेटरी साहब। अच्छा जी, ये हो गया जी। सर, हैव यू ऑल सीन जी?
ठीक है जी। अच्छा जी, अभी देख लिया जी आपने मोहसिन नज़ीर साहब और फारूक साहब, इसको सील करें जी जनाब, इनको सील करें बैलेट बॉक्सेस को। सील करके ज़रा दिखाएं। हो गया जी सील सेक्रेटरी साहब। अच्छा सर, नाउ वी विल कमेंस विद द प्रोसेस डे। क्या हुआ? भाई चेक करें ना यार, सेक्रेटरी साहब आपको कहा है ना यार, टेप लगा दें वहां पे। अच्छा सर, नाउ वी विल start with the process of voting and the, भाई उसको टेप लगा दो एंड कोकर साहब जरा सा तशरीफ रखें। वी विल नाउ स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। सेक्रेटरी साहब अब ज़रा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप मेंबर साहिबान के नाम पुकारें। मेंबर साहिबान सेक्रेटरी साहब के पास आएँ, बैलेट पेपर लें और यहाँ से अपना पोलिंग बूथ जा कर के अपना वोट उसमें जो है मार्क करवाएं। चलिए जी शुरू करें। स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि पोलिंग बूथ में स्टैंप रख दे। सो विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल चेयर, मैं अभी अल्फ़ाबेटिकली नाम लूँगा कैंडिडेट्स का, मेंबर्स का, एंड वन बाय वन ये वो आएंगे, बैलेट पेपर उनको दिया जाएगा और वो पोलिंग बूथ में वोट करेंगे। अगर किसी मेंबर को कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे या मेरे जो डेस्क ऑफिसर्स बैठे हैं, दे कैन गेट एनी क्लैरिफिकेशन। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। जी सर। सर ये साइन डबा हुआ है इसमें, जिस खाने में सर आपका दिल चाहे। ठीक है, ये मौलाना साहब वोट दे दें तो उसके बाद विल शिफ्ट इट लिटिल बैक। ठीक है सेक्रेटरी साहब, ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब अपना वोट दे दें तो इसको ज़रा पोलिंग बूथ को ज़रा सा पीछे कर लें। बस बस चलें जी, अगला मेंबर बुलाएं। हाफिज अब्दुल करीम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया।
जी, तो ये मनाजिर आप देख रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, और अब बाकायदा तौर पर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है और पहला वोट कास्ट किया गया है अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से। और जिस तरह से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं मुजफ्फर हुसैन शाह, उनकी जानिब से ये बताया गया सारा प्रोसेस के किस तरह से अल्फ़ाबेटिकली इस ऑर्डर से बुलाया जाएगा तमाम अरकान को और उनको उनके बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे और फिर उसके बाद वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। 3 बजे ये प्रोसेस, 3:15 बजे ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है और 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद जो कामयाब होंगे उनका नाम का ऐलान किया जाएगा और फिर चेयरमैन साहब डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाएंगे और उसके अंदर भी वही प्रोसेस दोहराया जाएगा। और इनिशियली हमने ये देखा था एक कॉन्स्पिरेसी सामने आई थी और उसके ऊपर भी तहकीकात के लिए अभी बताया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से कि कमेटी बनाई जाएगी और 3 अरकान अपोजिशन से होंगे, 3 अरकान उसमें हुकूमती बेंचेस से होंगे और वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और सेक्रेटरी सेनेट को ये नाम पेश किए जाएंगे। अच्छा, जो बैलेट पेपर्स हैं वो हरे रंग के जारी किए जाएंगे चेयरमैन सेनेट के लिए और उम्मीदवारों के नाम उर्दू में दर्ज होंगे और इसके साथ साथ जिस तरह से कहा कि हुरूफ तहज्जी के ऑर्डर में जो उम्मीदवार हैं, जो वोटर्स हैं, उनको बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद अगर ये भी कहा गया है कि अगर बैलेट पेपर में कोई गलती हो तो पहले से ही बता दिया जाए बैलेट बॉक्स में डालने से पहले, और गलती पर नया बैलेट पेपर जारी किया जा सकता है, ये ऑप्शन मौजूद है। और साथ ही ये क्लैरिटी भी की गई है कि मोबाइल फ़ोन्स, कैमरे और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात पोलिंग बूथ ले जाने पर पाबंदी है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि इंक ड्राई ना हो जाए कहीं जो मोहर है उसकी, तो इसके लिए ये तरीक़ेकार रखा गया है कि जब 25 वोट कास्ट हो जाएंगे तो उसके बाद उस मोहर को तब्दील किया जाएगा। इसके साथ साथ पोलिंग के हवाले से ये बताया गया है कि 5 बजे बंद की जाएगी, फिर गिनती के बाद मुंतखब होने वाले उम्मीदवार से चेयरमैन सेनेट का हल्फ लिया जाएगा और उसके बाद फिर जो प्रोसेस हमने देखा उसमें ऐवान में खाली बैलेट बॉक्स भी दिखाया गया और साथ ही साथ जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से बाकायदा तौर पर डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि ये वोट कास्ट कर दिए जाएं। चूँकि 100 या 99 अरकान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं तो लगता यही है बज़ाहिर कि ये अमल इससे कहीं ज़्यादा पहले मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अब देखना यह है कि कौन सा उम्मीदवार इस वक्त फातेह बन कर उभरता है। आज ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया इनिशियली जब हमने ये देखा कि 3 या 4 वहाँ से कैमरे बरामद हुए और जो खुफिया कैमरे थे नस्ब किए गए थे, तो इसकी वजह से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पर अपोजिशन की जानिब से सवाल उठाए गए, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये कैमरे तो पहले से लगे हुए थे। फिर एक सवाल ये भी उठा कि जो कैमरों की पोजिशनिंग और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो पोलिंग बूथ बनाया गया उसके ऊपर फिर सवाल उठाए गए कि वहाँ पर वो मौजूद क्यों था। तो बहरहाल इसी पर काफ़ी आज मीडिया के मुख्तलिफ इदारों में हमने ये देखा कि यही चीज़ ज़ेर बहस रही और बड़ी चीज़ ये रही। इससे पहले नंबर गेम्स पर बात हो रही थी कि कौन किसको वोट देगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने अपने जो वोटिंग प्रोसेस है उससे एब्सटेन करने का फैसला दिया है, यानी कि वो वोट नहीं देंगे। और इसके साथ साथ जो नून लीग के एक सेनेटर हैं दिलावर खान साहब, उन्होंने भी कहा है कि वो अपना वोट नून लीग को नहीं देंगे, बल्कि वो पीडीएम को नहीं देंगे, वो देंगे ऑपोजिट कैंडिडेट को, यानी कि सादिक संजरानी साहब को। ये दावा है अभी तक। इस दावे की जो हकीकत है ये 5 बजे सामने आ जाएगी और जितना इससे पहले समझा जा रहा था कि ऑन पेपर गवर्नमेंट को बर्तरी हासिल है, लेकिन ऑन पेपर ऑपोजिशन को बर्तरी हासिल है, लेकिन यहाँ पर अब सिचुएशन ये है कि काफ़ी टफ ये मुकाबला अब ये होने जा रहा है। और एक और चीज़ जो ऑपोजिशन के लिए वो मुश्किल है वो ये है कि एक एक वोट जहाँ पर कीमती था वहाँ पर इसहाक डार साहब अपना वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुँचे हैं, हालांकि इस वक्त उनके वोट की अशद ज़रूरत थी। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा कि MQM की जो सेनेटर हैं नौ मुंतखब खालिदा अतीब साहिबा, वो इद्दत में थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर जाकर फतवा लिया और उसके बाद फिर अब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँची हैं। तो बिल्कुल पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से हिदायत भी जारी की गई हैं। सबसे पहला वोट कास्ट किया है अब्दुल गफूर हैदरी ने और हिदायत जो दी गई हैं उनमें ये कहा गया है कि बैलेट पेपर पर गलती हो तो बैलेट बॉक्स में डालने से पहले बताएं और ये भी कहा गया है कि गलती होने पर नया बैलेट पेपर जारी भी किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन्स, कैमरे और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात पोलिंग बूथ ले जाने पर पाबंदी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से तमाम तर हिदायत दी गई। उसके बाद पोलिंग का अमल शुरू हुआ। अब्दुल गफूर हैदरी ने पहला वोट कास्ट किया और मजीद हिदायत दी गई कि बैलेट पेपर पर लगाई जाने वाली मोहर 25 वोट के बाद तब्दील की जाएगी। अजहर फारूक हमारे साथ
मौजूद हैं। अजहर, कहिएगा, तमाम सेनेटर्स मौजूद हैं यहाँ पर इसहाक डार के अलावा? जी हाँ, तकरीबन तमाम सेंटर इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं और पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त तक 4 वोट जो हैं वो पोल हो चुके हैं। 5 बजे तक का वो टाइम है, 3 से 5। अगरचे ये अमल तो पहले ही मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसहाक डार ऐवान में मौजूद नहीं है, इसलिए 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा। 5 बजे काउंटिंग होगी। पहले चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है और बाद में डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। शहरी रहमान ने एक पॉइंट उठाया था कि PTV की जो अंदर कैमरे लगे हुए हैं उनको कवर कर दिया जाए, क्योंकि उनकी लोकेशन ऐसी है कि जो वोट पोल होता है तो वो ट्रेस हो सकती है। तमाम उनका ये जो एतराज़ था उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि वो कैमरे जो हैं उनका पोलिंग बूथ के साथ किसी किस्म को कोई तल्लुक नहीं है। तो इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। 4 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजहर जी। और सेनेट इलेक्शन का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। चेयर सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव का। और आज जो नाखुशगवार वाकया पेश आया था जिसमें खुफिया कैमरे सामने आए और जिस तरह से ऑपोजिशन की जानिब से उनकी निशानदेही की गई, तो अब इस मामले पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से अहकामात दे दिए गए हैं कि अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और 6 रुकनी एक कमेटी बनाई जाएगी। 3 जो रुकन हैं वो ऑपोजिशन के होंगे, 3 रुकन हुकूमती साइड के होंगे और उसके बाद इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो इस हवाले से प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से बता दिया गया है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,